بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله والصلاة والسلام عليها ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات کا یہ اعلان کہ فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون، دیکھو اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس جیسے روایت کے حساب سے تفسیریں ہیں، ایسے ہی عقلی طور پر بہت سی تفاسیر ہیں کہ ہماری عقل کیا کہتے ہیں۔ تفسیری اور روایت یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو آیت اور روایت سے ثابت کرنا، جیسا کہ صاحب المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب ان کی روحانیت کی بلندی کے لیے ایک سلوات بھیجا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کے لیے ہے کہ قرآن کے جو انہوں نے تفسیر کیا ہے المیزان 20 جلدوں میں ہے، بلکہ تھوڑا سا دوسری چاپ جو اضافات کے ساتھ آئی ہے، یعنی انڈیکس وغیرہ الگ کر دیا ہے، فہرست وغیرہ الگ کیا ہے اور کچھ چیزیں اور اضافہ کیا ہے، تو 22 جلد ہے۔ 20 سال کے اندر انہوں نے محنت کیا اور اس محنت و مشقت میں آخر میں انہوں نے اپنی اہلیہ کا بھی شکر ادا کیا اور اہلیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم تفسیر کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کرتے تھے اور تفسیر لکھنے بیٹھے تھے تو کئی گھنٹہ لگتا تھا ایک دن میں، تو ان کی عادت زیادہ کھانے وغیرہ کی نہیں تھی، البتہ چائے کی عادت تھی۔ ایران میں سادی چائے بغیر دودھ کی چلتی رہتی ہے، 2-2 4-4 گھنٹے مجھ سے تھکان نہیں ہوتی۔ تو ان کی اہلیہ کی عادت تھی کہ حاجی آغا یعنی ان کے شوہر کھانا تو زیادہ شوق سے نہیں کھاتے، لیکن تفسیر لکھنے بیٹھے تو چائے کی عادت ہے، تو کمرے میں جا کے دق الباب نہیں کرتی تھی، بلکہ کمرہ ہلکا سا کھول کے چائے رکھ کے ہٹ جاتی تھی، اور اس کے بعد یہ دیکھ لیتے تھے، پھر چائے پی کے پیالی رکھ دیتے، اس طرح سے دن بھر میں کئی دفعہ۔ لہذا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ کہیں سے کوئی ڈسٹرب نہیں، کوئی وہ نہیں، لہذا یہ تفسیر 20 سال میں الحمدللہ ایسی تفسیر لکھی کہ سب سے پہلے قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے ثابت کیا، جس کو کہتے ہیں یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کر دیتی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اسی آیت کو روایت سے ثابت کیا کہ آیت یہ ہے لیکن رسول اللہ کی حدیث یہ ہے، اس پر اماموں کی روایت یہ ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عقلی طور پر بھی ثابت کیا کہ یہ ٹھیک ہے، آیت سے ثابت ہے، روایت سے ثابت ہے، ہماری عقل کیا کہتی ہے۔ لہذا یہ جو آیت مبارکہ حتیم نے پیش کیا ہے، اس میں تفسیری طور پر ہمارے دونوں برادران یعنی اہل سنت اور برادران اہل شیعہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہمارے گزرے، سب نے بیک وقت ایک زبان میں کہا ہے کہ یہاں پر مراد جو کہا گیا ہے کہ سوال کر لو اہل ذکر سے، اس سے مراد ہمارے امام معصوم ہیں۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان میں پھر جن کو اجازت دیا ہے امام کی طرف سے، جن کو اجازت ہے، سب نہیں، بلکہ پہلی تفسیر اور قرآن کا پہلا مجمع نظر سب سے اولیت میں کون ہے؟ رسول اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ کے بعد معصومین ہے جو ائمہ طاہرین، اس کے بعد ائمہ طاہرین نے جن کو اپنے زبان سے حجت قرار دیا کہ میں تمہارے اوپر حجت ہوں اور یہ ہمارے برادر کرام
हमारी तरफ से तुम पर हुज्जत है। और रद्द अलैहिम, इनको रद्द करना, और रद्द अलैना, हमको रद्द करने के बराबर है। इनकी इहानत करना हमारी इहानत करने के बराबर है। इनको सुबह और हल्का शुमार करना हमारे ऊपर हमला करने के बराबर है। ऐसी बहुत सी हदीस आई हुई है। लिहाजा तीसरी सूरत में ये कि जिनको इजाज़त दी गई है, यानी कुरान से इजाज़त मिली है रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह ने इजाज़त दिया है मौलाए कायनात को, मौलाए कायनात के साथ साथ सारे हमारे आइम्मे मासूमीन 12 इमाम तक, फिर हमारे इमामों ने इजाज़त दिया है मुज्तहिद को, आयतुल्लाह को, आलिम दीन को। लिहाजा जब कुरान मजीद ने ये कह दिया कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, और ये आय मुबारक सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर, यानी पूरे कुरान में 2 दफ़ा आया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहल ज़िक्र से सवाल कर लो अगर तुम नहीं जानते। तो हमारे पास माशाल्लाह एक बहस ये भी है कि कुरान दावा है और अहले बैत दलील, यानी कुरान में सारे दावे किए हैं, तो उन दावों को साबित कौन करेगा? अहले बैत साबित करेंगे। मतलब कुरान मजीद ने ये फरमाया कि आदम का पुतला दोनों हाथ से साना, अगर अल्लाह ताला का 2 हाथ मान लें तो फिर अल्लाह नहीं बचेगा, जिस्मानियत के हम कायल हो जाएंगे। लिहाजा जब कुरान ने कहा 2 हाथ, तो ये 2 हाथ कौन है? गदीर में दोनों हाथ उठा के फरमाया मन कुंतो मौला फादा, वहाँ खिलाफत का ऐलान है, यहाँ पर दलील है। कि वो दोनों हाथ जो है ये हाथ है मौलाए कायनात के, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ सबके ऊपर है, यानी यहाँ कुदरत मुराद है कि 2 हाथ अल्लाह ताला ने इशारा किया है, लेकिन वो 2 हाथ रसूलुल्लाह के हाथ है, मौलाए कायनात के हाथ है, इमाम हसन के हाथ है, इमाम हुसैन के हाथ है। और इत्तेफाक की बात है कि इनका हाथ ऐसा बुलंद और इतना बरतर, इतनी कुदरत वाला है कि कोई उस पर एतराज़ नहीं करता। अगर एतराज़ किया तो अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं। जैसा कि रिसालत माब के लिए है कि रिसालत माब ने जब पहली दफ़ा आवाज़ बुलंद किया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह को एक मानो तुमको नजात मिल जाएगी, सबको जमा किया, अपने अक़वाम को, अपने रिश्तेदार, अपने अक़रबा को। उसमें बहरहाल पहली दफ़ा चूँकि बुलावा और दावत थी, सब में अबू जहल भी, अबू लहब भी, सब आदि। अबू लहब ने एतराज़ कर दिया। जैसे ही रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से मैं पैगाम लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए खैर लेके आया हूँ, वो दीन इस्लाम है, उसमें अल्लाह को एक मानना है। तो लोगों ने पूछा कैसे एक मानना है? तो रसूलुल्लाह ने हाथ उठाया, कहा जैसे कि मेरा एक हाथ बुलंद है और ये एक अंगुली से इशारा, ऐसे ही अल्लाह एक है, इसमें कोई शरीक नहीं हो सकता। कुछ लोग नहीं समझे तो फिर आपने दूसरा हाथ उठाया। जब दूसरा हाथ उठा के फरमाया जैसे मेरा एक हाथ है और दूसरा हाथ नहीं है, ये जो हाथ में दिखा रहा हूँ यही है, ऐसे ही अल्लाह एक है। मेरा सारा मजमा तो सर झुकाए रहा। अबू लहब ने वहीं से कहा कि ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए। इतना कहना था कि अल्लाह ताला को इतना नापसंद आया कि फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, कि मेरे हबीब पे नहीं आया अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। अल्लाह और तब यानी फिर कुरान ने कहा कि ऐसा सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि हो भी गया उसके साथ, वह तब यानी हलाक हो गया। और उसके यानी यहीं से एक नुक्ते की बात हो, माशाल्लाह साहिबान नजर माशाल्लाह सुन रहे हैं, तो एक नुक्ते की बात भी निकल रही है कि जो कुरान में नहीं लेकिन नुक्ता निकल रहा है, इसलिए का अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना कि रसूलुल्लाह ने 2 हाथ दिखाए, कहा देखो ऐसे अल्लाह एक है जैसे ये मेरा एक हाथ, फिर आपने उठाया कि ऐसे अल्लाह एक है जैसे मेरा हाथ, तो उसने कहा कि तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए। तो मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह, जिसने आपके हाथ पर हमला किया अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तो जिसने आपके दिमाग पर हमला किया उनके लिए क्या रखा हुआ है? यहाँ तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया कि ऐ बुलैह तेरे दोनों हाथ टूट जाए। तो जो रसूल के दिमाग पर हमला कर रहा है, इन्ना रजुला ला यहजु, लिहाजा हमारे पास बहुत ज़्यादा मसले की अहमियत है और इंशाअल्लाह अभी अर्ज भी करेंगे कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि बुजुर्ग हज़रात भी बैठे रहते हैं, लिहाजा सिर्फ इशारात और किनायात में बात आ जाती है, अर्ज कर दी जाती है। लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं कि जो
नौजवानों को इजाज़त है कि बाद में अलग से आके पूछें। मसलन जैसे यहाँ मस्जिद है और अब माशाल्लाह आपका मजमा है सामने, इस्तिबरा का मसला है, पेशाब करने जाएं तो कैसे वहाँ से अपने आप को पाक करें और कैसे इस्तिबरा करना, ये सब मसला ऐसा है कि अलग से पूछना चाहिए, इसलिए कि सबके सामने ये बहुत से मसाइल नहीं बयान किए जा सकते, या जैसे औरतों के बहुत से मसाइल हैं वो यहाँ पर बयान नहीं हो पाते। तो बहरहाल हमारा टेलीफोन नंबर है, घर में दे देना चाहिए कि ऐसे ऐसे आप अलग से मसला पूछ सकते हो। उसमें मसलन हैज़ का मसला है, इस्तिहादे का मसला है, निफास का मसला है, इसलिए कि जब तक ये मसला नहीं पूछेंगी औरतें बहुत से मामले में उलझी रहेंगी। मसलन विलादत के बाद क्या उड़ा दिया गया कि 40 दिन तक सब माफ़ है, रोज़ा नमाज नहीं, हालांकि गलत। विलादत के बाद जैसे हैज़ के लिए है कि 3 दिन से कम नहीं, 10 दिन से ज़्यादा नहीं, ऐसे ही निफास के लिए है कि विलादत के बाद औरत को 10 दिन के अंदर एक खून आता है जिसको निफास कहा जाता है। तो ये 10 दिन का मामला उड़ा दिया कि 40 दिन तक इस पर नमाजी माफ है। तो जब नहीं पूछेंगे तो ये सब जहन खुराफात में रहेंगी औरतें, लिहाजा इसको पूछना चाहिए कि अब जैसे विलादत हुई है तो कई दिन तक मतलब छिल्ला है, कई दिन तक हमको कमरे में रहना, उजरे में बहुत सी चीज़ें इसे उड़ी हुई है, क्योंकि और मसाइल में नहीं है, न शरीयत में औरतों ने उड़ा दिया है, तो लिहाजा उनको टेलीफोन नंबर रखना चाहिए। अपने खास मसाइल के बारे में उड़ी उड़ाई बातों पर अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन के बाद फिर नमाज वाजिब हो जाती है उनके ऊपर। अगर रोज़े का महीना है और दूध नहीं पिलाना है तो रोज़ा वाजिब हो जाता है, वरना दूध पिलाने का मसला बच्चे का तो अलग है, जो पहले अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई मराहिल में बयान किया। तो बहुत से मसले ऐसे कि हमारे नौजवान अलग से मुराजा करें, उसमें इस्तिबरा वगैरह है, यानी मसले कि हमारे पास इतनी ज़्यादा अहमियत है कि बेरूनी साहब एक ईरान के गुजरे हैं, बहुत हालांकि किसान थे, देहात के थे, लेकिन मसले की अहमियत बयान करके गए। और एक आयतुल्लाह से उनका बड़ा दोस्ताना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मोमिन और मुत्तकी आदमी थे, अबू रेहान बेरूनी। लिहाजा जब बहुत ज़्यादा बुढ़ापा जारी हो गया और आखिरी वक्त आया तो आयतुल्लाह साहब को याद किया उन्होंने। आयतुल्लाह साहब जब पहुँचे सारी बातें हुई और बाद में उन्होंने अर्ज ये कर दिया कि अब ख़तरा है, ये दुनिया से चले जाएंगे। ये सारी बातें करके अभी बाहर निकले, इतने में देखा कि अबू रेहान बेरूनी फिर से बुला रहे हैं। कहा कि आयतुल्लाह साहब मुस्तैद साहब चले गए, थोड़ा 1 मिनट के लिए फिर से बुला दो। तो थोड़ा सा मुस्कुराए भी कि अब आखिरी वक्त है, मैंने तलकीन कर दिया कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, अब क्या ज़रूरत है। बहरहाल जब पहुँचे तो देखा आँख खुली हुई, थोड़ा सा बातें कर रहे हैं। कहा बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे जहन में एक मसला गर्दिश कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ कि पूछ लूँ। तो मुस्कुराए कि तुम्हारा आखिरी वक्त है, लोग तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, और तुम मसला पूछ करके दुनिया से जाना चाहते। अल्लाह साहब ने बताया कि तुम्हारा टाइम अब कम रह गया है और तुम दुनिया से जा रहे हो, मसला पूछ रहे हो। तो हंस करके कहा कि ये बताइए कि एक मसले से आलिम हो के मरना बेहतर है या जाहिल रह करके मरना बेहतर है। आयतुल्लाह साहब ने मसला समझाया, उन्होंने कलमा पढ़ा और इंतकाल हो गया। एक सलवार लिहाजा इसमें कोई शर्मा नहीं था। माशाल्लाह हमारे पास कुछ नौजवानों को सुनाते रहते, बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे पास हम यहाँ मेहराम में ऐलान कर रहे हैं कि फ़ोन के मामले में शायद ही किसी को ये जुमला हमने कहा, हमको तो याद नहीं है कि अभी हम खाली नहीं। रात में 2 बजे कोई फ़ोन करता, हमारे पास रात में भी आता है, बाहर के जो फ़ोन आते हैं इस्तिखारे वगैरह का, कभी 1 बजे कभी 2 बजे रात में, रात भी 2:30 बजे रात में आया। तो कभी किसी से हम ये नहीं कहते कि हम सो रहे हैं या हम आराम कर रहे हैं, नहीं, तुम्हारे मसले की ज़रूरत है। तो अभी मतलब जैसे अभी दिल्ली में हम सोने चले क्योंकि रात भर जगते हैं, एक साहब का आया और जैसे पूछा उन्होंने कि आप सो रहे थे, हमने कहा नहीं साहब हम बताइए आपका काम क्या है। हालांकि हम सोने जा रहे हैं, पूरी तैयारी बते, लेकिन ये बता रहे अहमियत इतनी ज़्यादा है कि कोई मसले मसाइल पूछना चाहे तो उससे ये न कहे कि हम आराम करने जा रहे थे या हम मतलब नहाने जा रहे थे। नहीं साहब ठीक है, जो भी 2 मिनट की बात है, पहले आप अपना कह दीजिए। तो बहुत सी चीज़ें सामने नहीं पूछ पाते और जो है मुनासिब भी नहीं रहता है कि सामने मसलन इस्तिबरा वगैरह मसला ऐसा है कि जो अलग ही से समझाना ज़रूरी है। लिहाजा बाद में कोई न कह दे कि साहब इस्तिबरा का मसला इतना अहम था और मस्जिद से आपने बयान नहीं किया या जुमा और जमात से, तो हम कहेंगे साहब ये ऐसा है कि ये अलग से पूछने का है, 20 मजमे में बयान करने का नहीं है और हमने इजाज़त भी दे रखी है। बहरहाल इंशाल्लाह ये सारी बहसें आएंगी, उसमें जल्दी जल्दी सबसे पहले आज गुस्ल की तरफ इशारा, क्योंकि गुस्ल का मसला ऐसा है कि अगर गलत हो गया तो इबादत उसकी गलत होती चली जाएगी। नमाज के लिए तो हुक्म है कि चाहे 8-10 साल तक गलत किया हो, नमाज के लिए पता चल गया कि अरे हम गलत करें, पूरी नमाज दोहराना। रोज़े के लिए अलग मसला है, क्योंकि रोज़े में एक मसला
मसला ये भी नासी है, जाहिल है, मसले से नावाकिफ था या भूल गया था, तो उसके लिए थोड़ा सा नरमी है। लेकिन नमाज के लिए अगर गुस्ल गलत हो गया, मसलन गुस्ल वाजिब कि गुस्ल जनाबत उसके ऊपर वाजिब था, या औरत है हैज में है, निफास में है, इस्तिहादा में है, उसके ऊपर वाजिब था, उसने गुस्ल गलत कर लिया, तो सही तरीका क्या है? बहुत ज़्यादा इसमें घबराने और परेशान, क्योंकि मैंने कभी कभी यहाँ गौर भी किया और बहुत सी जगह पर गौर किया कि गुस्ल मैयत वगैरह भी देते हैं तो सोचते हैं कि बस आज आखिरी नहान इसका, बहुत ज़्यादा पानी बहा। हालांकि पानी बहाने का इतना हुक्म नहीं, एक दफ़ा उसको पाक कर ले। मतलब मैयत जो है तो उसको पाक करने के लिए कितना चाहिए? 3 बाल्टी पानी चाहिए, 4 बाल्टी पानी चाहिए। आपने पाक कर लिया, मतलब साबुन लगा करके, अब बदन पाक हो गया, तो गुस्ल करने में अगर 3 गुस्ल है तो 3 बाल्टी बहुत है। 3 बाल्टी यानी 20 लीटर की जो होती है, हमने देखा है मतलब 4-4 टन 5-5 टन पानी खर्च करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शहर का पानी आज खाली हो जाएगा। हालांकि कतरे कतरे का लिया जाएगा मैशर में हिसाब, साफिया देख छलक जाए ना पैमाने से, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। बहुत ज्यादा इतना पानी गिराने का हुक्म नहीं है, यानी जो है आपको आबे सिदरे से भी गुस्ल देना है तो बस जितना पानी वाजिब है उतना ही गिराइए, नहीं कि 1 बाल्टी की 10 बाल्टी गिरा चले जा रहे हैं कि अभी नियत सही नहीं हुई तो साहब फिर से गिरा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, झीटा पर। जी जी हाँ, नहीं कहीं कहीं माशाल्लाह बहुत सही बना भी दिए। इसी वजह से हैदराबाद, दक्कन वगैरह में, लखनऊ में एक नहर टाइप की हौज बना दिया कि जो है पाक करने के बाद उसमें डुबकी लगाते थे, जिसको गुस्ले इल्तिमासी कहते। माशाल्लाह अच्छी बात आपने बता किया, लेकिन सही बात है कि ज्यादा पानी न गिराने के चक्कर में लोगों ने हौज बनवा रखा है। हैदराबाद, दक्कन, बम्बई है या लखनऊ वगैरह है कि मैयत को वाजिब चीज जो पाक कर दिया तो उसके बाद डुबकी लगा देते। 2 आदमी इधर से पकड़ते हैं, 2 आदमी इधर से पकड़ते हैं, नियत करने के बाद उसमें जो है पानी में डाला और निकाल लिया। उसके बाद आबे सिद्र बनाने के लिए थोड़ा सा आबे सिद्र से भी फिर पानी में डाला और निकाल लिया, तो पानी इस तरह से भी बचाया जा सकता है। तो इतना ज्यादा गिराने की जरूरत है, ये तो नमाज मैयत का हो गया। इसी तरह से इंसान कभी कभी गुस्ल में शक में पड़ जाता है, पानी डाला फिर भूल गया, फिर डालने चला जा रहा, नहीं इतना पानी गिराने की जरूरत नहीं है। आप जब गए तो आपने अपना पेट के नीचे पाक कर लिया, क्योंकि अगर नजासत में है पूरा बदन नजीस नहीं है, गुस्ल जनाबत हो या कोई भी आधा जो है आपने पाक कर लिया, आधी बाल्टी पानी डाल दिया, 3 जग पानी डाल दिया, साबुन लगा लिया, फिर 3 जग डाल दिया, उसके बाद हाथ में पानी लिया, नियत किया। अगर नमाज का वक्त है तो वाजिब, चाहे गुस्ल जनाबत हो चाहे गुस्ल है, तो नमाज का वक्त है तो वाजिब की नियत करेंगे। नमाज का वक्त नहीं है तो मकरूह है कि ऐसे आलम में इंसान 2-4 घंटा ऐसे रह जाए, कभी तो नमाज का वक्त नहीं है लिहाजा हम बाद में कर लेंगे, नहीं, गुस्ल फौरन करना चाहिए। इसलिए कि ज़्यादा देर तक जनाबत के आलम में रहते हुए इंसान अगर खाए पिए तो सफ़ेद धब्बा हो जाता है। सफ़ेद धब्बा से बचने के लिए हालांकि मकरूह करार दिया गया, लेकिन तिब्बी लिहाज से भी नुकसान हो जाता है, लिहाजा तो कहा गया है कि गुस्ल जनाबत फौरन किया करो। हालांकि वाजिब कब होता है? जब नमाज का वक्त, मसलन कोई जो है 11 बजे दिन में नजिस हो गया था, अभी फौरन वाजिब नहीं गुस्ल करना, लेकिन 12:30 बजे आप नमाज के लिए जा रहे तब वाजिब हो गया, लिहाजा पहले तो गुस्ल करेंगे तो उसमें वाजिब की नियत नहीं करना है। आपने बदन पाक कर लिया, जग में जो है पानी है, नियत करें गुस्ल जनाबत मैं करता हूँ तरतीबी कुर्बतन इल्लल्लाह, चूँकि तरतीबी है, ये इल्तिमासी अलग है, जिसमें डुबकी लगाया जाता है उसको इल्तिमासी कहते हैं। तरतीबी आपने सर को धुला और सर पर ऐसा पानी डाला कि गर्दन पे गिर गया, यानी सरो गर्दन एक दफा में, एक जग में नहीं हुआ तो 2 कर ले, ज्यादा 3 कर ले, शक करने की जरूरत नहीं है कि 8-10 जग डाले चले जा रहे हैं। फिर इसी तरह से दाहिनी तरफ पानी डालें और पानी डालने के बाद जग रख दें और जल्दी जल्दी हाथ घुमा के जो है पूरे हाथ पर और पैर ऐसे लटका लें कि पैर के नीचे से निकल जाए। अगर देखें एक जगह नहीं तो फिर घुटने पे डाल करके पानी फिर से कर लें। इसी तरह से बाईं तरफ, ये जो है गुस्ल का तरीका, ये इसी में सब जुमा का गुस्ल हो, ईद बकरीद का गुस्ल हो, यानी बहुत मुख्तसर पानी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आदमी इंतजार करे कई बाल्टी पानी हम्माम में हो तब गुस्ल करने के लिए जाए, नहीं, आधी बाल्टी से पाक कर ले और 1 बाल्टी से कर ले, यानी ज़्यादा 20 लीटर, ज़्यादा 25 लीटर, तो ये हो गया। लेकिन नमाज का वक्त आ गया तो वाजिब की नियत करेगा, गुस्ल जनाबत में करता हूँ, अदा वाजिब कुर्बत तरतीबी, अदा वाजिब कुर्बत तरीका वही है। तो अब वहाँ पर जो है फिर वजू की जरूरत नहीं, आपने बहुत पहले कर लिया था, नमाज का वक्त आया शक में पड़ गए कि पता रिया तो नहीं खारिज हो गई, नींद का गलबा तो नहीं आ गया, तो उसमें आप वजू कर सकते हैं। लेकिन जो नमाज के लिए करके निकलते हो 10 मिनट बाद नमाज में जाना है तो फिर आपसे वजू साकित है, वजू करने की जरूरत नहीं है। वजू के ऊपर तो कहा गया कि दूसरा वजू कर ले तो नूर अला नूर है, एक वजू किया था आपने, लेकिन देखा कि वजू कितने सवाब है कि फिर 10 मिनट बाद दिल चाहा आपका एक वजू और कर ले, तो उसकी जो है इजाजत है, लेकिन वाजिब गुस्ल के बाद इजाजत नहीं है।
वाजिब गुस्ल आपके नमाज के लिए काफ़ी है, तिलावत के लिए काफ़ी है, अगर वहाँ तवाफ में है, हज पर है तो उसके लिए काफ़ी है। लिहाजा ये वाजिब हो गया, नीयत बदलती रहेगी। जो तरीका बताया सरो गर्दन, फिर दाहिना हिस्सा, बायां हिस्सा और पाँव उठा लेंगे ताकि तलवे से पानी अंगूठे से निकल जाए। नहीं है तो एक दफ़ा फिर जो है हाथ जलेगी फेर लेंगे और पानी फिर से डाल लेंगे। ये वाजिब इसी तरह से जुमा का है। और जुमा का गुस्ल कर लिया आपने, जुमा के लिए निकल रहे हैं, 12 बज रहा है, तो जुमा का गुस्ल करके आप जुमा भी पढ़ सकते हैं, ज़ुहरैन भी अदा कर सकते हैं। ज़ुहरैन के लिए अलग से आपको वضو करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कर ले तो ठीक है, इसकी तारीफ है। फिर वाजिब गुस्ल के बाद मना किया गया कि गुस्ल जनाबत के बाद आप जो है फिर वضو नहीं कर सकते। अगर आपको जो है गुस्ल टूटा नहीं है तो गुस्ल टूट गया, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, रात रिया खारिज हो गई या पेशाब पैखाने चले गए, तो जैसे वضو टूट जाता है ऐसे गुस्ल भी टूट जाता है। लेकिन गुस्ल हो गया आपका, टूट गया मतलब ये नहीं कि फिर से करना, एक कर लिया आपने अब काफ़ी हो गया। तो ये हो गया मसलन जो है गुस्ल का तरीका। उसके बाद एक बहस और आती है तयम्मुम की, बहुत सरसरी तौर पर बयान कर दिया जाए कि मसलन आप जो है आजकल की रातें ऐसी हैं कि आपको मालूम है कि अजान जो है 4:31 पर हो जाएगी और उठे आप देखा कि नजिस, मतलब नौजवान है हमारा, देखा कि मनी खारिज हो गई है और गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया। अब घड़ी देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि 5 या 4 मिनट बचा है, गुस्ल करने जाएंगे तो कब लिबास उतारेंगे, कब पाक करेंगे, कम से कम 10 मिनट तो लगेगा। लिहाजा शरीयत ने कहा कि नहीं, अब यहाँ तयम्मुम कर लो, जल्दी से अपने आप को थोड़ा सा इतना धुल लो या कपड़ा बदल करके 1 मिनट में पाक मिट्टी पर दोनों हाथ मिला करके कहो कि मैं तयम्मुम करता हूँ बदले गुस्ल जनाबत के अदा वाजिब कुर्बतन इल्लाह। ये कहे कि मिट्टी पर हाथ मारो और हाथ मारने के बाद इस तरह झाड़ो और मिला करके पेशानी के ऊपर जहाँ बाल उठता है रख करके पूरी पेशानी जो है हाथ को रगड़ते हुए ऐसे आ जाओ। इस तरह से भी करना है, आप लोग के दिमाग में होगा कि ऐसे किया जाता है तो वो भी सही है, लेकिन आप जो है ऐसे ही बाल के उगने की जगह से रख के पूरा चेहरा मस कर दे और उसके बाद जो है इस तरह से दाहिने हाथ पर गट्टे से, अगर अंगूठी वगैरह है तो उतार देंगे, इस तरह से खींचेंगे, फिर बाएं हाथ से इस पर करेंगे और फिर एक दफ़ा मारेंगे और मारने के बाद फिर तयम्मुम करेंगे। ये बहुत काम की चीज़ है, इसमें अगर इंसान याद कर ले तो कभी उसकी नमाज कदा नहीं होगी, चाहे ट्रेन में है, चाहे बस में है, चाहे सफ़र में है, वضو की मुश्किल हो रही है, तयम्मुम करे, अपना वाजिब अदा कर ले। बाद में दिल नहीं भर रहा है तो बाद में कदा कर ले, वो मसला अलग है। लेकिन सफ़र के आलम में, पानी न होने के आलम में अपने पास इतनी ज़्यादा एहतियात है। और तयम्मुम की बहस ऐसे ही नहीं आई है, आप वضو करने बैठे ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि एक पाव पानी है आपके सामने, आप वضू कर लेंगे तो सामने एक जानवर है, कुत्ता है या कोई जानवर है जो प्यास से तड़प रहा है, तो शरीयत ने कहा कि वो वضू का पानी कुत्ते को पिला दो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। हमारे पास इतना ज़्यादा जब जानवर की अहमियत है, यहीं से इनको सबक लेना चाहिए कि हमारे पास तो दहशतगर्द हो ही नहीं सकते जब शरीयत ने कुत्ते का इतना ख्याल रखा है, तो इंसानों का कितना ख्याल रखा है। ऐसे कैसे बताना, आप थोड़ा दिमाग लगा के देखें। एक मच्छर के बारे में सोचना है, एक मक्खी के बारे में सोचना है, एक चिमटी के बारे में सोचना है। मौला कायनात ने फरमाया है कि अगर पूरी दुनिया की सब अकालीम हमको दे दी जाए और ये कह दिया जाए कि ऐ अली ये चिमटी जो जर्रा लेके जा रहे छीन लो, तो मैं पूरी दुनिया को लात मार दूंगा लेकिन एक चिमटी को नहीं सताऊंगा। अल्लाह अकबर, यानी उसके दहन से जर्रा नहीं लूंगा। यही तो वजह है कि 7 साल पहले मैंने जुमला कहा था कि हमारे रहबर में और दुनिया के रहबर में इतना बड़ा फर्क है कि दुनिया के रहबर न जाने चारा घोटाले में कितना बड़ा घोटाला कर जाता है और पकड़ में जो है बड़ी देर में आता है, और हमारा मौला वो है जो एक चिमटी का भी चारा नहीं लेना चाहता। इतनी ज़्यादा दिक्कतें नजरी है। बहरहाल आज 2 मसला हो गया, चूँकि वضو का मसला बहुत तफसीली तौर पर, लिहाजा मैं सोच रहा था बयान करता, लेकिन देर हो जाएगी। जैसा कि वादा किया है, वादे के मुताबिक इस वक्त से आप गुस्ल याद रखें, तयम्मुम याद रखें और मसले की अहमियत, ये 3 बहस हो गई है इंशाअल्लाह। उसके बाद वضو की तफसीली तौर पर बहस आएगी कि उसमें मुस्तहब क्या है, वाजिब क्या है और सारे शराइत क्या है। एक सलवात मोहम्मद